the day may be dull, but our next guest never is, and especially when he's just turning 35. There is no chance that Vijay Kedia would be having a dull moment. So, welcome in on the show, the indomitable Mr. Vijay Kedia. And Kedia ji, from all of us out here at NDTV Profit, wishing you a very, very happy 35th birthday. You're being mean. Thank you, my 25 साल के आदमी को आप 35 बोल रहे हैं. He does not look like a 25 साल के आदमी day को 35 older बोल than रहे हैं. 25. देखिए हाँ, वो दिखते हैं 25, वो एक्चुअली हैं 35. अच्छा. पासपोर्ट जो भी एज बोले वो अलग बात है. अब मैं एज पर एक बात बोलूं आपको नीरज भाई, कि एज पे एक तो क्या उम्र से मैं ज्यादा बड़ा दिखता हूं, और उस पर एक बात बोलना चाहता हूं कि न जाने कितने पर्व मनाए, न जाने कितने दिए जलाए, जब जब तूने न्यू हाई बनाए तब तक मैंने जन्मदिन मनाए. अच्छी बात है. क्या बात है. well, भगवान करे कि आपका जन्मदिन और 100 साल तक बने, ताकि मार्केट 100 साल तक नए नए हाई बनाता रहे. No, ठीक है, क्या करना है, कि मार्केट बढ़े, ठीक है, ये अच्छी बात है. Thank you very much. No, but I obviously want to wish you, and I'm sure Alex and Tamanna will wish you as well. Yeah, a very very happy birthday to you, Kedia ji. Thank you, ma'am. And Thank you, ma'am. अब ऐसा है ना कि because of your talent, आपके बर्थडे पर आप ही को गाना गाना पड़ेगा. ना कि हम गाएंगे आपके लिए. तो मैडम, ये मार्केट जैसे न्यू हाई पे जा रहा ना, तो मेरे को बार बार यही गाना याद आता है कि आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा. क्या बात है. चलिए, बर्थडे विश पर रिटर्न गिफ्ट भी मिल गया. नहीं, बट ये गाना तो हम गवाएंगे. विजय केडिया जी से एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू हम एक गाना गवाएंगे, बर्थडे सॉन्ग. बट केडिया जी, क्या मार्केट्स आपका बर्थडे और बर्थ ईयर बनाएगा अभी अगले नेक्स्ट 1-2-3 महीने में? आपको लगता है कि एक मार्केट में आपका बर्थडे बनाने की गुंजाइश है? विल वी मूव हायर फ्रॉम वेयर वी आर? So market index wise, it may move higher, I think, because as I had said earlier also on your interview, on your channel, that entire जितने भी दुनिया के सारे market हैं, all are at new high, and new high माने new high, एकदम all time high, और कहाँ से कहाँ पहुँच गए. India is only lagging behind. So index wise, if you ask me, maybe we have chance that we may also touch or make a new high. But personally, let me tell you, I am bullish for 5, 6, 7 years India story. But maybe I think even if it makes new high, that won't be meaningful, because still mid caps and small caps are lagging behind, and they are still 30-40% cheaper and down than their peak made in 2024. So that won't be that much. Maybe it would कि लोगों में गुस्सा आएगा, spirit wise it is all right. But I think in new high बना के कोई बहुत ऐसा बढ़ जाए, as on date while I am talking to you, I am not in that camp. I may be wrong, and I wish I go wrong. Kedia ji, the last time we spoke, if I remember correctly, आप थोड़े से cautious थे, not maybe in the Diwali time, but maybe before that, and you were gravitating towards a little more cash than, and you said that you held more cash than you've ever held before, including large stocks, right? More liquid stocks. Has that view changed a little bit with the earnings season? Has that maybe you've been surprised on the upside, because we're seeing some of the estimations for earnings growth in the second quarter, and it's actually better than expected. Are you seeing that as well? No, maybe because I am very selective in the market. Currently, I do not have much cash left with me. I have invested in the market, but some shares I have bought maybe from the secondary market, and some I have invested into what you call private market, like startups and all. Public market, not exactly startups. So unlisted companies, IPO is going to come maybe after a year or so, or whenever, I don't know. Not because of the IPO and all, because I like this story. So I have deployed that fund there. So currently I do not have much cash, but as you rightly said, that I have a reasonable part of my whatever into liquid stocks, like some PSUs, banks and all. So I have invested in PSU stocks, which if I would like to switch over, I can do so in 2 days' time. केडिया जी, अब तक जो अर्निंग्स आए हैं, उससे क्या आपको लगता है कि मूड थोड़ा बदलेगा? Earnings are quite heartening compared to what was expected and compared to what the street thought when we spoke last. So far the earning is concerned, it's a very mixed earning. I don't think there is any earning को excited वाला earning नहीं है कि जिसको आपको लेके लगे कि मत चूको चौहान, ऐसा वाला बात नहीं है कि भाई अभी इसके अंदर में ये lifetime opportunity है. I don't think market is giving such kind of opportunity which you wouldn't like to miss. So मेरे को अभी भी लगता है कि अभी भी थोड़ा और reasonable, थोड़ा adjustment, consolidation और थोड़ा सा ये होना market में बाकी है.
उसमें कुछ ऐसा एक्साइटिंग लग रहा है आपको? आजकल ज्यादा चर्चा बाहर हो रही है और आपने जो हमारे इवेंट में आईपीओस पे कहा, आपको तो पता है कि वो वायरल हो चुका है हर जगह। मुच्छर पान वाले के आईपीओस की बात चल रही है। तो जो अभी आए हैं लेटेस्ट, उन पर कोई व्यू आपका? नहीं, मैं तो ऑलरेडी देखिए चश्मा लगा रखा हूँ, पहले से ही लगाता हूँ मैं तो मेरा कोई व्यू नहीं है। सो आई एम हैप्पी। और पोर्टफोलियो तो आपका वैसे ही ग्रो हो रहा है तो नहीं, पोर्टफोलियो ग्रो तो नहीं हो रहा। हाँ, कुछ पॉकेट है ग्रो हो रहा है, कुछ पॉकेट है जो परफॉर्म ही नहीं किया है। तो अभी अब क्या करेंगे? ये तो देखिए आपके हाथ में है नहीं, ये प्रभु के हाथ में, आपके हाथ में कर्म करना है तो अपने कर्म करते हैं, बाकी फिर मजा करने का और क्या। हाँ, ऐसे केडिया जी स्टड भी दिख रहे हैं। हाँ, he is not getting it और maybe he is ignoring us। हम ग्रो की भी बात कर रहे हैं, स्टड्स की भी बात कर रहे हैं। नहीं, क्या इग्नोर किया मैं समझा नहीं, सॉरी। अरे हमने एक चश्मे वाले की बात की और एक की बात की आईपीओ की जो ग्रो की बात करता है, और एक स्टड्स भी है। स्टड्स कौन सा है भाई? अरे हेलमेट वाला जो सारे अभी आईपीओ खोले हुए उनकी बात हम कर रहे हैं। उसकी भी कंपनी आ रही है, हेलमेट वाले की भी कंपनी आ रही है। केडिया जी 73 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया आईपीओ। ओह माय गॉड, क्या बात करते हो यार। अरे बाबा, तो अब ये मार्केट में अपनी कहानी आपको बता रहा है कि माने ये मार्केट देखो दोस्त, ऐसे ही होता है। वो एक बार रिलायंस पावर का इशू आया था, वो सबसे बड़ा इशू था, 5,000 करोड़ रुपया का इशू था अमेरिका से रिलायंस पावर का। वो मार्केट को लेकर डूब गया वो, बराबर है। तो इसी तरह ये जब बड़े जब इशू इस तरह के आते हैं ना, वो मार्केट का डेंजर साइन होता है। लेकिन ये कितने दिनों तक चलता है वो मालूम नहीं। कोमा में भी आदमी 6 महीना और निकाल लेता है, पता नहीं चलता है। तो इस बोलकर वो ये थोड़ा एक चिंता का विषय है। लेकिन चलो ठीक है, इसमें मेरे को नहीं लगता इतनी ज्यादा चिंता जो चिंताएं पहले होती थी, कि लोग भी एक तरह का वो रमी खेल रहे हैं ना। वो तो ठीक है, वो लिया, वो ड्रीम 11 बंद हो गया अभी, वो सब कुछ नजारा वजारा का भी वो सब कुछ गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। ये लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, ये ड्रीम 11 और खेलने का। तो लोग खेल रहे हैं कि 3 दिन का देखा जाएगा, 20% गया तो ठीक है, 20% आया तो ठीक है। तो मेरे को लगता है इसका भी शायद इतना ज्यादा नहीं एडजस्ट हो रहा है, ये लोगों के माइंड में एडजस्ट हो रहा लगता है ये इस तरह का जो। Well, वैसे आज अगर if we see the pockets that are doing very well, I mean there is viewers, there is Thangamil Jewelry, which is up about 11%. I think 3M India, something that all of us spoke about, is had some massive gains as well. So a lot of mid cap results have done well. Kedia ji, very quickly, गाना गाने से पहले very quickly is what have you recently added? I don't want a stock name if you can't give a stock name of course, but कौन सी थीम में आपने एडिशन किया है? क्या कैपिटल मार्केट, सीमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल, कहाँ पे आपने एडिशन किया है? कहाँ पे आपने पैसे निवेश किए हैं? तो मैंने पिछले 3-4 महीनों में जैसे मैंने एक पीएसयू बैंक लिया, जो ऐसे सबको मैं यही बोलता हूँ कि पीएसयू बैंक सस्ते मेरे को लगते हैं कंपेयर टू कि आप चश्मा लगा के उतार कर अगर आप देखोगे तो अगर आपको पावर नहीं है, चश्मा लगाओगे तो ब्लड दिखाई देगा आपको, बराबर है। तो पीएसयू बैंक इसे थ्रोवे प्राइस में मिल रहे हैं कई पीएसयू बैंक। यू हैव टू बी सिलेक्टिव, तो उसमें किसी को लेना नहीं है। तो मैंने पीएसयू बैंक में जो मैंने बोला लिक्विड मैंने एसेट्स मैंने जो लगाया तो पीएसयू बैंक में लगाया, तो वो मेरे को लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है और वो स्लो एंड स्टडी वो बढ़ते रहेंगे। तो एक तो मैंने उसमें काम किया है मैंने, और एक हॉस्पिटल के शेयर्स लिए, लेकिन वो बहुत महंगे हैं तो उसमें तो वो समझना पड़ेगा उसको। वो मैं ऐसे ले लिए कि हाँ भाई ठीक है, 10-15 साल की स्टोरी लगती है। तो ये मीनिंगफुल काम किया है मैंने इनके अंदर में, और बाकी पब्लिक मार्केट, प्राइवेट मार्केट में काम किया। ओके, थैंक यू सो मच केडिया जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक बार फिर आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गिफ्ट भेज देना, एड्रेस भेजता हूँ मैं। हम रुके पार्टी के लिए। चलिए, Thank you, Kedia ji. Happy birthday, bye. Always fun to have Vijay Kedia on. He gives great advice and makes sure you laugh as well at the end of it.